Hello everyone. We are doing chapter number 15, Plant Growth and Development. This is the second video of the chapter, class 11th Biology. In this video, we are going to cover the following topics. First, plant development, then plant growth regulators, and in the plant growth regulators, we will study about plant growth promoters with the examples auxins, gibberellins and cytokinins. Plant development, what is it? It is a process that includes all changes in life cycle of an organism, starting from seed germination to senescence. Senescence means growing old. Okay. See the diagram number 1, seed germination दिखाया गया है यहाँ पर. Diagram number 2 में देखिए different phases दिखाए गए हैं, juvenile phase, adult phase and senescence. Here the plant is growing old. So जितने भी changes seed germination से लेकर senescence तक होते हैं, they come under development. और development includes two things, growth and differentiation. There is a diagram in your NCERT book. It shows diagrammatic representation of sequence of events which takes place in the development process. देखिए कौन कौन से events हैं जो development process में होते हैं. Start from the मेरिस्मेटिक सेल. मेरिस्मेटिक सेल्स क्या होते हैं? जो डिवाइड होते रहते हैं. इन मेरिस्मेटिक सेल्स में सबसे पहला स्टेप है, इसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, मीन्स इनका साइज इंक्रीज होता है. ओके जब इनका साइज इंक्रीज होता है, आफ्टर दैट दे अंडरगो सेल डिवीजन एंड दे फॉर्म मोर मेरिस्मेटिक सेल्स. देन व्हाट हैपन्स टू दीज मेरिस्मेटिक सेल्स? दे अंडरगो एक्सपेंशन और इलोंगेशन, एंड आफ्टर इलोंगेशन there is differentiation takes place, maturation takes place and finally mature cell is formed. Point number 4 पर देखिए mature cell बन चुका है यहाँ पर. Mature cell then grow old, senescence में enter कर जाएगा. Point number 5 and then eventually it may die. Okay, so these are the important events or important steps which takes place in the development process in the plants. यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ अ प्लांट सेल फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ, देखिए क्या सीक्वेंस है. नंबर 1 सेल डिवीजन, देन इलोंगेशन, देन डिफ्रेंसिएशन एंड फाइनली मैच्योरेशन, एंड मैच्योर सेल इज फॉर्म्ड. क्लियर? नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्लांट डेवलपमेंट इज plants follow different pathways and form different kinds of structures. When they form different kinds of structure in response to environment or in different phases of life, and this property of plant is called as plasticity when they are forming different kinds of structure. Example देखिए इसका क्या है, heterophilous, heterophily due to phases of life. यहाँ पर first example है, यहाँ पर 1 and 2 diagram देखिए. Example in cotton, coriander and larkspur, the leaves of the juvenile plant and mature plants are different in shape. डायग्राम पे आ जाइए, लार्कस्पर का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर. 1 and 2 डायग्राम देखिए, जुवेनाइल फेज है लीफ का और एडल्ट फेज में लीफ का दोनों का स्ट्रक्चर और शेप अलग अलग है. दिस इज द हेट्रोफिलस कंडीशन ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ. सेकेंड आइए, हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट. यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है बटर कप का. ओके जो वाटर में पाया जाता है और इसका कुछ पार्ट जो वाटर के अंदर होता है, वहाँ जो लीव्स हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और जो पार्ट वाटर के बाहर है वहाँ जो लीव्स हैं उनका स्ट्रक्चर और शेप अलग है. सी द डायग्राम नंबर 3 and 4. जो 3 टाइप का जो लीफ है, 3 डायग्राम में जो दिखाया गया है, वो जो लीफ है वो वाटर के बाहर वाला पार्ट है, वहाँ पर इस टाइप की लीफ देखने को मिलेगा, और जो वाटर के अंदर है पार्ट बटर कप का, वहाँ पर लीफ मिलेगा नंबर 4 टाइप जैसा. ओके सो दिस इज द हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट. Clear? Now come to the factors which control the plant development. 2 factors हैं, intrinsic factors and extrinsic factors. Intrinsic मतलब internal, extrinsic मतलब external. Okay? Intrinsic factor के फिर 2 टाइप्स हैं, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो है, और इंटरसेलुलर. इंट्रासेलुलर इज जेनेटिक एंड इंटरसेलुलर का एग्जाम्पल है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. कम टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर, लाइट, temperature, water, oxygen, nutrients, they are the factors which control the plant development. Okay. In this video, we will study about the plant growth
रेगुलेटर्स। कम टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको प्लांट हार्मोन्स भी कहा जाता है और फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। फाइटो मीन्स प्लांट्स, ओके। Plant growth regulators, PGRs, what are they? They are simple molecules that regulate plant growth. And based on the function, इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, plant growth promoters and plant growth inhibitors. Plant growth promoters, what are their role? They are for growth promoting activities. Basically इनका काम है कि जो एक्टिविटी ग्रोथ प्रमोटिंग है, जो प्लांट्स में हो रही हैं, उनको कंट्रोल करना, like cell division, enlargement, flowering, fruiting and seed formation. Examples हैं plant growth promoters के auxins, gibberellins and cytokinins. Then come to plant growth inhibitors. They are involved in growth inhibiting activities. कौन सी हैं ऐसे एक्टिविटीज़ प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हैं? डोरमेंसी, जो कि सीड में देखा जाता है, सीड को डोर्मेंट बोला जाता है क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हैं, सो इट इज़ अ डोर्मेंट कंडीशन, ओके। सो दे आर इन्वॉल्व इन डोरमेंसी। एंड सेकेंड है एब्सिशन। व्हाट इज एब्सिशन? डिटैचमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द लीफ फ्रॉम द प्लांट। प्लांट में से लीफ का डिटैच हो जाना, फ्रूट्स का डिटैच हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज एब्सिशन। सो दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एब्सिशन। नेक्स्ट, they play important role in plant responses to wounds. कोई डैमेज हो गया है पार्ट प्लांट का, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट, एंड दीज इनहिबिटर्स दे हैव अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस, एंड ऑल्सो दे हैव अ रोल इन स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। जो प्लांट के अंदर स्ट्रेस आ गया है ड्यू टू बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स, दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस ऑल्सो। एग्जाम्पल क्या है इनके? एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। इथिलीन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इथिलीन फिट्स ईदर ऑफ द ग्रुप, दोनों में आ सकता है ये, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में भी आ सकता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में भी आ सकता है, बट इट इज लार्जली अ ग्रोथ इनहिबिटर। क्लियर? कम टू प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स के बारे में। फर्स्ट कम टू ऑक्सिन्स। ये ग्रीक वर्ड है, ऑक्सीन मीन्स टू ग्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द बैकग्राउंड। ऑक्सिन्स की डिस्कवरी के बारे में हम स्टडी करते हैं। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व्ड दैट द कोलिप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास के जो कोलिप्टाइल्स हैं, दे रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। व्हाट इज दिस? इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। आपके सामने डायग्राम है यहाँ, जो उन्होंने सीक्वेंस ऑफ जो प्रैक्टिकल्स किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, डायग्राम देखिए। इसमें नंबर 1 पर देखिए क्या था। ये कोलिप्टाइल है कैनरी ग्रास का। व्हाट हैपन? लाइट को इसमें थ्रो किया गया है फ्रॉम वन साइड, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन है, यानी वन साइड से लाइट को गिराया गया है ऑन कोलिप्टाइल्स। व्हाट हैपन्स? कोलिप्टाइल विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट, नंबर 1। नंबर 2 पर आइए, कोलिप्टाइल की टिप को काट दिया गया है, टिप को रिमूव कर दिया गया है। अब नाउ दिस इज नॉट बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। थर्ड पर आइए, क्या किया है इसके अंदर? टिप को कवर कर दिया है बाय अ ओपेक कैप। ओपेक कैप है, लाइट इसमें से अंदर नहीं जा सकती है। अब क्या होगा? ये कोलिप्टाइल जो है बेंड नहीं करेगा लाइट की तरफ। नेक्स्ट 4th पर देखिए, कैप को फिर से कोलिप्टाइल को फिर से कवर किया है कैप से, बट यहाँ जो कैप है वो ट्रांसपेरेंट है, लाइट आसानी से जा सकती है इसमें। देन दिस कोलिप्टाइल इज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। क्लियर? नाउ कम टू द 5th पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इस कोलिप्टाइल का बेसल पार्ट को कवर किया है, नीचे से इसको कवर किया है बाय एन ओपेक शील्ड। अब लाइट बेसल पार्ट पर नहीं आ रही है क्योंकि ओपेक शील्ड से कवर कर दिया है, बट यू कैन सी कोलिप्टाइल इज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। क्या कंक्लूजन निकाला इससे चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ने? इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ द कोलिप्टाइल कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलिप्टाइल। सो टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिप की वजह से ही कोलिप्टाइल की बेंडिंग हो रही है। ओके, नेक्स्ट, F.W. Wendt isolated auxins from the tips of coleoptiles of oat seedlings.
ओट सीडलिंग्स में से F.W. वेंट ने आइसोलेट किया ऑक्सिन को ओट सीडलिंग्स की कोलिप्टाइल में से। क्लियर। नाउ मोर अबाउट ऑक्सिन, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑक्सिन के। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ऑक्सिन इज ऑक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पर मिलता है ये ऑक्सिन, और वहाँ से वो माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ माइग्रेट करते हैं? माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, जहाँ उनको एक्ट करना है, जहाँ उनका एक्शन होना है, वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम द एपेक्स। क्लियर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स। आइए, दो तरीके के ऑक्सिन्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल ऑक्सिन का एग्जाम्पल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA एंड इंडोल ब्यूटरिक एसिड IBA, और इनको आइसोलेट किया गया है फ्रॉम प्लांट्स क्योंकि नेचुरल हैं। सेकेंड, सिंथेटिक एग्जाम्पल है इसका NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-D मीन्स 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड। So these are the examples of natural and synthetic auxins. Clear? Come to the functions of auxins. Very important functions. First function देखिए इसका क्या है? To initiate rooting in stem cuttings for plant propagation. डायग्राम देखिए, नंबर 1 डायग्राम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टेम के नीचे से रूट्स बहुत सारी निकल रही हैं, कि जब स्टेम की कटिंग को हम ग्रो करना चाहते हैं, अगर हम स्टेम कटिंग से न्यू प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो हम उसमें उसकी टिप के ऊपर ऑक्सिन लगा सकते हैं और वहाँ से रूट ग्रो हो जाएंगी। क्लियर। सो दे इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोपगेशन। सेकेंड रोल देखिए, फंक्शन क्या है? प्रमोट फ्लावरिंग। डायग्राम नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल है पाइनएप्पल्स। क्लियर। तो फ्लावरिंग भी प्रमोट करते हैं ऑक्सिन। थर्ड पॉइंट, थर्ड फंक्शन देखिए, टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। ये अर्ली स्टेजेस पर लीफ को गिरने से और फ्रूट को गिरने से रोकता है, अर्ली स्टेजेस पर, रिमेंबर दिस। बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। लेकिन जब लीव्स ओल्ड हो जाती हैं या फ्रूट मेच्योर होकर ओल्ड हो जाता है, तब उनका एब्सेशन हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है फ्रॉम द मेन प्लांट। सो ऑक्सिन्स दे प्रमोट इन द एब्सेशन ऑफ older leaves and fruits. You can see the diagram. Clear? यहाँ पर लीफ का एब्सेशन हो रहा है, डिटैच हो रही है लीफ फ्रॉम द मेन प्लांट। ओके। फिफ्थ, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल है टोमेटोज में। देन सिक्स देखिए, दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स मीन्स दीज आर द केमिकल्स विच हेल्प इन किलिंग द हर्ब्स। ओके। 2,4-D का एग्जाम्पल है हर्बिसाइड का, इज यूज टू किल डाइकॉट वीड्स। वीड्स, व्हाट आर वीड्स? दीज आर द अनवांटेड प्लांट। जो अनवांटेड प्लांट किसी भी जगह पर ग्रो हो गए हैं, किसी लॉन में, किसी गार्डन में, किसी फील्ड में, दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और इनको रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं उनको हर्बिसाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है 2,4-D। ओके, दिस 2,4-D इज यूज टू किल डाइकॉट वीड्स बट इट डज नॉट अफेक्ट मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स को इनसे रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। ऐसा लॉन बनाना चाहते हैं जहाँ कोई भी अनवांटेड प्लांट ना हो, अनचाहा प्लांट ना हो, तो उसके लिए हम 2,4-D यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेवेंथ यूज क्या है? कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंसिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ओके। नेक्स्ट यूज देखिए इसका ऑक्सिन्स का, इन हायर प्लांट्स। सीधा डायग्राम जो नीचे दिया हुआ है डायग्राम, क्या होता है हायर प्लांट्स के अंदर? द ग्रोइंग एपिकल बड, जो ऊपर बड है, एपिकल बड जो है वो इनहिबिट करती है लेटरल बर्ड्स को ग्रो करने में। ओके, डोमेंट कर देती है लेटरल बर्ड्स को। लेटरल बर्ड्स अब ग्रो नहीं कर सकती अगर एपिकल बर्ड एक्टिव है तो। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। नाउ सी द डायग्राम नंबर 1 and 2। 1 में देखिए क्या है दिखाया गया है कि टर्मिनल बर्ड जो है ऊपर वो रिलीज कर रही है ऑक्सिन और लेटरल बर्ड्स को इनहिबिट कर रही है, उनको ग्रो नहीं होने दे रही। सेकेंड डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, टिप को काट दिया गया है, टिप को रिमूव कर दिया गया है। ओके, और जब टिप को रिमूव कर देते हैं तो लेटरल बर्ड्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं और प्लांट बुशी हो जाता है। ओके, तो सी हेयर व्हाट इज रिटन, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, यानी डीकैपिटेशन कर दिया है
ऊपर की टिप को काट दिया है, रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। और ये यूज कहाँ करते हैं हम? इट इज अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। ओके, हेज को बनाना है गार्डन के अंदर, तो उसके लिए हम उनके टिप्स को काटते चले जाते हैं और साइड में वो ग्रो होती जाती हैं, थिक हो जाती हैं, हेज बन जाता है उसका। ओके, कम टू नेक्स्ट, जिब्रेलिन्स। दीज आर एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, एसिडिक नेचर होता है इसका। सेकेंड पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ओके, ये क्या करता है? ये एक डिजीज कॉज करता है राइस में, और उस डिजीज का नाम है बेकने डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज। व्हाट हैपेंस इन दिस? आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर बेकने डिजीज दिखाया गया है राइस प्लांट के अंदर। राइस प्लांट जो है एबनॉर्मली लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा टॉल हो जाता है, उसकी लीव्स थिन हो जाती हैं। बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पार्शली फिल्ड और एम्प्टी ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल यूजलेस ग्रेन हो जाते हैं ये। ओके, सो दिस इज द डिजीज कॉज बाय जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। अब ई क्यूरोसावा ने क्या किया? व्हाट ही डिड, ही टुक अ हेल्दी सीडलिंग प्लांट्स। एक हेल्दी राइस प्लांट ले लिया, राइस सीडलिंग प्लांट ले लिया, और उसको ट्रीट किया विद द फिल्ट्रेट ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकोरिया से। ठीक है, अब क्या होगा? उसके अंदर, उस हेल्दी राइस सीडलिंग के अंदर भी बेकनी डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देने लगे। क्लियर? सो ई क्यूरोसावा treated the sterile filtrate of Gibberella fujicorae, a fungus that cause Beckney disease or foolish seedling in rice, to healthy rice seedling. As a result, it showed the symptoms of Beckney disease. Later, इस सब्सटेंस को क्या आइडेंटिफाई किया गया? एज अ जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड नाम यहीं से लिया गया है क्योंकि एसिडिक नेचर होता है, इसलिए एसिड लिखा गया, और जिब्रेलिक का जो नाम लिया गया है वो लिया गया है जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स इन फंगाई एंड हायर प्लांट्स, और इनका जो नाम दिया जाता है वो लिखा जाता है GA1, GA2, GA3 एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट देखिए, जिब्रेलिक एसिड और GA3 और टर्पिन्स is one of the first discovered and most intensively studied gibberellin. सबसे ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी किया गया है और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था GA3 को। क्लियर? कम टू द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स। फर्स्ट फंक्शन देखिए क्या है? दे कॉज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस। डायग्राम देखिए, यहाँ पर ग्रेप्स के बंचेस दिखाए गए हैं। एक बंच छोटी लेंथ का है, एक बंच की लेंथ ज़्यादा है। So they are used, gibberellins are used to increase the length of grapes stalk. ये फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन देखिए, to elongate and improve the shape of fruits such as apple. आपके सामने एप्पल है, एप्पल की शेप को अच्छा बनाना है, इम्प्रूव करना है, उसके साइज को ठीक करना है, इलोंगेट करना है, तो हम जिब्रेलिन्स का यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, दे डिले सेनेसेंस, मीन्स ओल्ड एज को डिले करते हैं। इसलिए क्या हो सकता है कि फ्रूट जो है लंबे समय तक ट्री के ऊपर रह सकता है, और इस फ्रूट की मार्केट पीरियड, इट इज़ मार्केट पीरियड बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक हम इस फ्रूट को ले जाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4 पर आ जाइए। GA3 इज़ यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस। ये माल्टिंग प्रोसेस होता कहाँ है? इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री, जहाँ पर बियर बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है, जिब्रेलिक एसिड इज एडेड टू स्पीड अप जर्मिनेशन। सो दीज आर द यूजेज ऑफ जिब्रेलिन्स। क्लियर? और देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्या फंक्शन है इसका? शुगर केन स्टोर्स शुगर इन स्टेम। ये तो सबको पता है कि शुगर केन का यूज क्या है, इससे हमें शुगर मिलता है। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन्स। अगर हम इसकी क्रॉप के ऊपर जिब्रेलिन्स को स्प्रे कर दें, व्हाट हैपन्स? इसकी लेंथ बढ़ जाएगा, स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगा, एंड इट इंक्रीजेज द ईल्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। इतना सारा ईल्ड हम बढ़ा सकते हैं बाय स्प्रेइंग द शुगर केन क्रॉप विद द जिब्रेलिन्स, क्योंकि इससे इनकी स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 6 आइए, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GAs हास्टन द मेच्योरिटी पीरियड। अगर जुवेनाइल कॉनिफर्स को हम स्प्रे कर दें GA से, तो क्या होगा? उनका मेच्योरिटी पीरियड फास्ट हो जाएगा, और इट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो सीड का प्रोडक्शन पहले हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 7th यूज देखिए,
फॉर बोल्टिंग. व्हाट इज बोल्टिंग? इंटरनोड को इलोंगेट कर देना. इंटरनोड क्या होती हैं? स्टेम के ऊपर नोड्स होती हैं और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड कहते हैं. सो इंटरनोड इलोंगेशन just prior to flowering is called bolting, and this is done in beet, cabbages and many plants with rosette habit. इन plants के अंदर हम ये कर सकते हैं with the help of gibberellins. Come to the cytokinins. यहाँ पर पहले डायग्राम देखिए नीचे. वर्क है स्कूग एंड कोवर्कर्स का. क्या किया था उन्होंने? इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम में से कैलस लिया था. कैलस होता क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसमें सेल्स तो हैं बट सेल्स क्या काम करेंगे? डिफ्रेंशिएशन इनमें नहीं हुआ, कोई क्लियर फंक्शन नहीं है. तो दिस इज द कैलस. इसमें उन्होंने ऑक्सिन डाला. ओके, ऑक्सिन डालने के बाद देखा कि ये प्रोलिफरेट नहीं कर रहे, बट ऑक्सिन्स के साथ अगर उन्होंने क्या और ऐड किया उसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू या ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क और डीएनए, इन तीनों में से कोई एक और चीज डाल दिया अलॉन्ग विद द ऑक्सिन्स इन द कैलस. व्हाट दे सॉ प्रोलिफरेशन ऑफ कैलस. कैलस प्रोलिफरेट होने लगा, उसमें सेल डिवीजन हो गया और बहुत सारे सेल्स बन गए. सो स्कूग एंड कोवर्कर्स, ऊपर देखिए जो लिखा हुआ है, ऑब्जर्व्ड कैलस प्रोलिफरेशन इन टोबैको कैलस in presence of extracts of vascular tissue, yeast extract, coconut milk or DNA in addition to auxins. Then later, what happens? Skoog and Miller later identified and crystallized the active substance and termed as kinetin. Clear? नाम दिया उन्होंने जो सब्सटेंस उनको मिला, kinetin. साइटोकाइनेंस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइटोकाइनेंस का जो रोल है वो साइटोकाइनेसिस में है, सेल डिवीजन में है. ओके, एंड साइटोकाइनेंस वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन. सबसे पहले काइनेटिन की फॉर्म में साइटोकाइनेंस को डिस्कवर किया गया. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए. हेरिंग इज अ नेम ऑफ अ फिश. इस फिश के स्पर्म के डीएनए से काइनेटिन को आइसोलेट किया गया, डिस्कवर किया गया. और नाम क्या था इसका? N6 फरफ्यूरिल एमाइनोप्यूरिन. ये एक एडेनिन डेरिवेटिव है. ओके, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि काइनेटिन डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स. प्लांट्स में ये नहीं मिलता नेचुरली. ओके, नाउ सर्च चल रहा था नेचुरल सब्सटेंस का जो कि साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटी हो उसमें. ओके, सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज led to isolation of G18. G18 को कहाँ से निकाला गया? From corn kernels, कॉर्न के जो कर्नल्स के जो सीड थे उनमें से, एंड कोकोनट मिल्क में से. इज द नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज. ओके, ये नेचुरल सब्सटेंस है जिसकी एक्टिविटी साइटोकाइनिन जैसी है. देयर आर सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी. ओके, नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो हैं वो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? दे आर सिंथेसाइज फ्रॉम द रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे कि रूट, एपिसिस, शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन्स. फर्स्ट फंक्शन देखिए, दे प्ले अ रोल इन साइटोकाइनेसिस, मीन सेल डिवीजन में इनका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है. सेकेंड, दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स. न्यू लीव्स बनाने में हेल्प करते हैं, क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करते हैं लीफ के अंदर, लेटरल शूट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन देखिए, दे हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म करना है, उसको ओवरकम करना है, तो उसके लिए भी हम साइटोकाइनेंस का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट का मूवमेंट, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं ये, जिससे क्या होता है, लीफ के अंदर सेनिसेंस यानी ओल्ड एज आना डिले हो जाता है. जल्दी ओल्ड नहीं होती है लीफ क्योंकि उनको फूड मिलता रहता है, न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज होते रहते हैं लीफ के अंदर, इसीलिए इनके अंदर सेनिसेंस डिले हो जाता है. तो साइटोकाइनेंस हेल्प टू प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले द leaf senescence. So these are the functions of cytokinins. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Do the test which is given in the
description box. Subscribe the channel and wait for my new video. Thank you. Thank you.